بتانا تھا, رات کو بھی بتا سکتا تھا. اس کو پتا نہیں تھا آج میٹنگ میں یہ جان کے انسلٹ کر رہے ہیں, یہ عوام کی انسلٹ ہے. پہلے کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ ہم یہاں عدالت میں پہنچ گئے, کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ اب بھی ہم یہاں بیٹھیں گے کہ جج صاحب تشریف واپس لائے اپنے عدالت میں. تنخواہیں ان کو سارے پاکستان کو, آپ اپنی جو نوکری کرتے ہیں آپ اپنے ٹائم سے پہلے گھر جا سکتے ہیں نہیں, تو یہ کیوں جائیں؟ 3:30 بجے اگر اس کی میٹنگ ختم ہوتی ہے واپس آئے اور آگے تاریخ دیں پرسوں کی. 1.5 سال ہو گیا اس کیس کو لے کے چلتے ہوئے, کیوں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ عمران خان کو جیل سے نہ نکالے, جج تو بٹھائے میں یہ کام ہے. یہ جوڈیشل مارڈر, جوڈیشل نا انصافی کریں, ججز تو کر رہے ہیں. بیٹھیں گے, ہم جائیں گے. اچھا, یہ کہا گیا تھا گزشتہ سماعت پہ کہا گیا تھا کہ سلمان صدر صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اس کیس کے لیے حاضر ہوں گے, تو کیا ملاقات تو نہیں ہو سکی ابھی تک؟ سی ایم دائر کر دیے. سلمان سلمان صدر ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملاقات کروائی جائے جو نہیں ہوئی. ایک انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیل پٹیشن سنی جائے. اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ جو مین اپیل سب لگا دو تاکہ یہاں سے ساروں کو پتہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ کہہ رہے 1 سال گھسیٹے گا. 17 ایڈجرنمنٹ, آج 17ویں ایڈجرنمنٹ کی ہے, 17واں ایڈجرنمنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹ بھی ہمیں کتنی مشکلوں سے ملی ہے. پچھلے سالوں میں آپ کتنی دیر یہاں گھنٹے بیٹھتے ہیں, جو مشکل سے ملی ہوئی ڈیٹ ایڈجرن 17ویں آج ایڈجرنمنٹ کی ہے. پارٹی چیئرمین یہاں نہیں پہنچے جبکہ دیگر لوگ پہنچے. یہ سلمان راجہ کھڑے ہیں, ان سے ہم نہیں جا رہے. آپ نے کال دی, بالکل 10,000 آپ دیکھیں, جب تک ان لوگوں پہ پریشر نہیں ڈالیں گے, جب تک ان لوگوں پہ آپ پریشر نہیں ڈالیں گے, ججز کو آپ دیکھ لیں انسلٹ کر رہے ہیں ان کا, یہ ان پہ پریشر ڈالیں گے. عمران خان کو کب جا کے انصاف ملے گا, کب جا کے عمران خان کی آنکھ کی وہ علاج ہوگا. ہم نے پریشر اتنا بڑھانا ہے ان کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ عمران خان کا علاج بھی ہم کروائیں گے اور انصاف بھی دلوائیں گے. اور کیا طریقہ ہمارے پاس رہ گیا؟ کچھ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ آپ یہاں پہ لاٹھی چارج کریں, ٹیئر گیس ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریں. کیوں ہم چاہتے ہیں کریں؟ تاکہ ساری دنیا میں, یہ دنیا میں ثالثی بننا چاہ رہے ہیں نا, پہلے دیکھیں گے اپنے لوگوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. دکھائیں دنیا کو, یہ کریں نا ٹیئر گیس. یہاں ریڈ زون میں آئیں, ٹیئر گیس کریں, لاٹھی چارج کریں. سارے یہ جو لا میکرز اور لائرز ہیں ان کو اریسٹ کریں, ہمیں بھی اریسٹ کریں آ کے اریسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیئر گیس چلے, میڈم. ہم چاہتے ہیں کہ لاٹھی چارج ہو. 9 اپریل کی کال کے بعد تو ویسے بھی گرفتاریاں اور جرافیں جاری ہیں, تو یہاں سے ممکن ہے یہاں کہ سے کریں, لاٹھی چارج کریں. ہم عدالت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں ہمارے پر لاٹھی چارج کریں گے؟ کریں نا. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھائے گی کہ دنیا میں ثالثی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اوروں کا انصاف جو اپنے ملک کے اوپر, اسرائیل ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے. عمران خان جو 80-90% پاکستان کی نمائندے ہیں, یہ لوگوں کی آواز بند کی ہے انہوں نے, یہ اپنے لوگوں کی آواز بند کی ہے. عمران خان کو بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا یہاں پہ جمہوریت ہے؟ یہ دنیا کو آپ دکھائیں. ڈالیں کیا 9 اپریل کو بھی جلسے کا اعلان ہے, 4 سال رجیم چینج کو ہو جائیں گے. سلمان آئے. سابق جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد ججز انصاف نہیں کر سکتے, ان کے بس میں نہیں ہے. اپوزیشن کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان, جب انصاف جب ججز انصاف دینے سے محروم ہو گئے تو تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ جی سر, سلمان آئے صاحب بتائیے. دیکھیں, دنیا کے تمام معاشرے جو مہذب ہیں اور انسانی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان بغیر قانون کے, رول آف لا کے اور عدل و انصاف کے بغیر نہ معاشرے ترقی کر سکتے ہیں, پیش رفت کر سکتے ہیں, نہ امن و امان حاصل کر سکتے ہیں, نہ مناسب زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. اس ملک کے اندر معروف ہے, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, الملک تبقى مع الکفر ولکن لا تبقى یا یبقى مع الظلم, کہ حکومتیں کفر سے تو باقی رہ سکتی ہیں, ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی.
यानी जहां अदल का फुकदान हो जाए, इंसानों को इंसाफ न मिले, जुल्म हो तो वो सिस्टम ढह जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। पाकिस्तान पूरे के अंदर और यहां पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ ना मिलना यानी जुल्म होना है, यानी ना इंसाफी होना है, यानी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना है। वो हुकूक जो अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं, उसने आजाद खल्क किया है। इन्हें इंसानी लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसानों के सर पर करामत का ताज और इज्जत का ताज रखा है। ये इंसानों की तौहीन है, बेहुरमती है इंसानियत की भी। इस वक्त आप देख लें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आदल इंसाफ नहीं मिलता। आप सबके सामने चले जाए, निचले कोर्टों से जाके ऊपर चले जाए, जिन लोगों के साथ नाइंसाफी है, इनमें से एक इमरान खान साहब भी है। उनका जुर्म क्या है? वो झुका नहीं इनके आगे। उसका जुर्म क्या? उसने कोई कारखाने नहीं लगाए अपने लिए। उसका जुर्म है कि वो करप्शन और करप्ट लोगों का क्लब है, उसका हिस्सा नहीं बना है वो। उसका जुर्म यह है कि वो आजादी और हुर्रियत की बात करता था। उसका जुर्म यह है कि पाकिस्तान के लिए इस्तिकलाल की बात करता था, दाखिली खुद मुख्तारी की बात करता था, पाकिस्तान के नेशनल ट्रस्ट की और नेशनल सिक्योरिटी की बात करता था। वो पाकिस्तान को बावकार देखना चाहता था और पाकिस्तानियों को। उसका जुर्म है ये। गुलामों ने पकड़ा है उसको, गुलामों ने, बेज़मीरों ने गिरफ्तार किया उसे, बेहमीयत लोगों ने, बेगर्स ने उसे गिरफ्तार किया है, जेली FIR काटी है। और जब उनमें कुछ नहीं बन सकता, डिक्टेटेड फैसले कराए जाते हैं। और फिर जब आप यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं, जमानत के लिए आते हैं, तारीखें नहीं मिलती हैं, मिल जाए तो हेयरिंग नहीं होती है, बहाने होते हैं। मुझे बताएं, जज का जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है, सबसे पहला काम क्या है? इंसाफ देना। अगर कोई इंसान जज की अहमियत से वाकिफ हो और अपने काम की अहमियत से वाकिफ हो, मैं अपने असातीद को जानता हूं। एक मोहल्ले में बेटा मर गया है, क्लास पढ़ा के जनाजे में गया है। ये हक है स्टूडेंट्स का, उनको मैं पढ़ाऊंगा, वक्त ज़ाया ना करूं, जनाजा बाद में हो सकता है। एक जज कुर्सी पर जब बैठा हुआ है, पहली जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को इंसाफ दे, उनके केसेस सुने, डिले ना हो। आपको पता है कि डिले होना भी ना इंसाफी है केसेस का, अननेसेसरी। आज यही हो रहा है। आप देख लें, एक तमाशा लगा हुआ है, 1 साल से ज्यादा तमाशा लगा हुआ है, इससे पहले भी तमाशा लगा हुआ है। ये मुल्क की तबाही बर्बादी की निशानियां हैं। जैसे बादल बारिश की निशानियां होते हैं ना, इसी तरह से ये नाइंसाफी मुल्क की तबाही और बर्बादी की निशानी है। हमारे अतराफ में आप देख रहे हैं बहरानों के उठते हुए धुएं, जंग, ऐसी जंग जो शायद कई साल चले, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई देखे किस तरह से बढ़ रही है। आप देखें, कोई भी बहरान हो, उसका बराह रास्त बोझ अवाम उठाते हैं। नामनी की कुर्बानी अवाम लगते हैं, माशी बहरान की कुर्बानी अवाम देते हैं, सियासी बहरानों की कुर्बानी अवाम देते हैं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर आपके अतराफ में अमेरिका ने और इसराइल ने जालमाना हमला किया, मुज़ाकरात हो रहे थे, बिला वजह हमला किया है। ईरान का अमेरिका के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता है, कोई उनके टेरिटरी के डिस्प्यूट्स नहीं है, कहां से उठा? इसराइल के साथ भी ऐसे ही है। ये अटैक असल में पूरे ईस्ट को, बिलखुसूस वेस्टर्न और ईस्टर्न साउथ एशिया को रीसाइज करके रीशेप करने के लिए है। इसके लिए तैयारी हो रही है। क्या आप इमरान खान को जेल में रखे पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल सकोगे? क्या पार्लियामेंट को इररेलेवेंट रख के ये काम कर सकोगे? पेट्रोल कितना महंगा किया है, और महंगा करेंगे ये। इनके जहाज तो वहां से आ रहे हैं पेट्रोल के, इनको तो कोई रुकावट नहीं हो रही है।
जो अबनाए हुर्मत से महंगाई जान बूझ के आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। आप यकीन कर लें, जान बूझ के इनके इंतकाम लिया जा रहा है और आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, सजा दी जा रही है, क्योंकि इनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आवाम से तो इनकी दुश्मनी है। आवाम को तो ये हकीर समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनके करतूत इंसान देख लेता हैरान हो जाता है, शर्म ही नहीं है। लिहाजा हालात जिस तरह से दुनिया के हो रहे हैं, पाकिस्तान भी उन्हीं हालात का शिकार होने जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान हाउस इन ऑर्डर किया जाए। फ्री ट्रायल के जरिए खान साहब का जो हक है कानूनी, उनको दिया जाना चाहिए। और केसेस में कुछ भी नहीं है, अगर चलाएं यकीन करें चंद दिनों के अंदर खत्म है ये। लेकिन अगर आप ये समझते हैं उन्हें जेल में रख के तो आप कामयाब हो जाएंगे, एक खुदा भी है यहाँ पर, अल्लाह भी है, आखिरत भी है। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, मैं जालिमों को मोहलत देता हूं ताकि इनका सख्त एहतसाब कर सकूं। इनका जो एहतसाब होगा इन जालिमों का, कातिलों का, लुटेरों का, बच्चों के, औरतों के कातिलों का, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने वालों का, लोगों की नामूस पे हमले करने वालों का, इक़्तिदार के भूखों का, फिरौन की तरह इनका, नमरूद की तरह और यजीद की तरह इनका एहतसाब होगा, इनका अंजाम होगा। लिहाजा यहाँ लोग बैठे हैं, ये जब तक नहीं देंगे डेट, क्यों नहीं डेट दे रहे? हेयरिंग की डेट क्यों नहीं दे रहे? आज नहीं है, कल करनी है, क्यों नहीं कर रहे? जज 2 मिनट लगते थे। अगर फर्ज करते हैं कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी सी इंसाफ देने से भी ज्यादा अहम थी। अपनी ड्यूटी जिसकी तनख्वाह लेते हैं उससे भी ज्यादा अहम कोई इमरजेंसी थी, बहुत बड़ी। जैसे मैंने पहले कहा, अदल का तकाजा यह है कि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई फौत भी हो जाए, जनाजा शाम को कर लो और जो लोग अदल के लिए आए हुए, इंसाफ के लिए, उनको अदल दो। खुदा भी राजी होगा, सवाब भी मिलेगा उसको। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी इमरजेंसी थी तो आप आते कहते जी माजूद चाहता हूँ, सुबह नहीं सुन सकता हूँ, शाम को सुन लूंगा। यहाँ तो रात 12 बजे तक अदालतें लगती रही हैं, नहीं है रात 12 बजे तक अदालतें, यही ये भी खुलती रही है रात को 12 बजे, बैठे रहे अंदर आके खोल के। लिहाजा अगर खुदा है, आप खुद सोचे, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक आदमी इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हो और इंसाफ ना दे, वो हक इस्तेहकाक रखता है वहां बैठे? तनख्वाह ले, फैसिलिटीज ले, ये सारा माल हराम है। फिर खौफ खुदा होना चाहिए, खुदा है, उसकी लाठी भी आवाज है। लिहाजा इन्हें चाहिए कि फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। वो नहीं चाहते कि हम मेरे पर कोई एहसान किया जाए। खान साहब को जो कानूनी हक है वो मांगते हैं। यकीन करें, अगर ये इनकी तरह होते ना, वो कहते हैं जी कंप्रोमाइज करके मैं जा रहा हूं लंदन, मैं जा रहा हूं बाहर, मैं जा रहा हूं सऊदी अरब, मैं फला जगह जा रहा हूं, तो ये सारे मसाइल हल हो जाते। उसका खुदा गवाह है। वो कहते हैं कि आप होते कौन है जो इस रस्म की बुनियाद रखे कि हमने झुकना नहीं है जुल्म के आगे, नाइंसाफी के आगे, हमने गुलाम नहीं बनना है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहना है। लिहाजा इन्हें डेट देनी चाहिए और ये हक है सबका, हर पाकिस्तानी का हक है। इसी तरह से खान साहब का भी हक है, ये मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो लोग यहाँ बैठे होंगे। शुक्रिया। अलामा साहब ये बताइएगा, कहा तो गया है ये झूठ बोल रहे हैं, ये अभी आपको यहाँ लोगों को उठाने के लिए कर रहे हैं। जब तक कॉज लिस्ट हम नहीं देखते, हम नहीं मानते इनकी लिस्ट। और ये इतने झूठे हैं कि सुबह को आते उसको भी उतार देंगे। ये झूठ बोलते हैं, हम यहाँ नहीं उठेंगे जब तक ये सलमान सफदर साहब अभी बता के। हाँ, तो सलमान सफदर साहब को पता है ना शाम को क्या होगा। नहीं, उसने ये नहीं बताया कि तारीख मिली है, उसने ये कहा है कि 3 बजे तक दे दी जाएगी। जब तक ये डेट हमें तारीख रिटर्न नहीं आएगी, ताकि हम वो कागज आपको दिखा दें कि ये झूठे कल क्या करेंगे। आप कल का इंतजार करो। ये इंसाफ कैसे देंगे जब ये झूठे हैं लोग सारे। बैठे हैं।